Hello friends, today we will discuss next points, that is Hess's law of the constant heat summation. Last lecture we have discussed bond dissociation enthalpy and bond enthalpy. Today we will discuss, that is Hess's law of the constant heat summation. First of all, give the heading Hess's law of the constant heat summation. Hess's law of the constant heat summation. A point आपको देखना है. It is very important for the board examinations. First of all, you must know the Hess's law क्या है. In 1814, Russian chemist G.H. Hess is a proposed the generalization regarding the enthalpy change of reaction is known as उसे क्या कहा है, is known as Hess's law कहा है. क्या बताया मैंने, ये 1814 रशियन केमिस्ट G.H. Hess is a proposed generalization regarding the enthalpy change of the reaction is known as उसे क्या कहते हैं, Hess's law. What is the statement of the Hess's law? इस Hess's law का आपको क्या पता होना चाहिए, स्टेटमेंट पता होना चाहिए. What is the Hess's law? The change in enthalpy accompanying the chemical reaction is independent is on the क्या is a independent is on the किसके पर, is a independent on the path. Okay, is independent is on the path, is the takes place the one step या number of steps in between the initial state to final state is known as उसे क्या कहते हैं, Hess's law. The change in enthalpy is accompanying the chemical reaction is the same, is the one step या number of step in between the initial state to final state is known as उसे क्या कहते हैं, Hess's law कहते हैं. सबसे पहले आपको Hess's law का क्लियर कट स्टेटमेंट पता होना चाहिए. The change in enthalpy is accompanying the chemical reaction is the same one step या number of step in between the initial state to final state is known as उसे क्या कहते हैं, Hess's law कहते हैं. या for a given reaction at constant temperature या constant pressure, for a given reaction at a constant temperature, constant pressure volume and constant pressure, for a given reactions at constant volume and constant pressure, the heat of reaction is the heat of reaction कैसी रहती है, सेम रहती है in one step or number of steps या नहीं तो वहां पे कहिए several step is known as उसे क्या कहते हैं, Hess's law कहते हैं. अनदर स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने क्या बताया, for a given reaction at constant volume and constant pressure the heat of reaction is the same whether in one step or several step is known as उसे क्या कहते हैं, Hess's law. यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, आप एक कौन सा ये क्लियर कीजिए. पहला बताया मैंने, the change in enthalpy is accompanying the chemical reaction is the same in one step या number of step in between the initial state to final state. आणि या for a given reaction at a constant volume and constant pressure, heat of reaction is the same in one step or several steps. Okay,
दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द, ये किसका स्टेटमेंट है? हेसेस लॉ ऑफ द कांस्टेंट हीट समेशन का। नाउ अभी कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर द सबस्टेंस, लेट अस सपोज द सबस्टेंस, ये let us suppose the substance A is converted into what? D. Okay, let us suppose that the substance A is converted into, किसमें conversion किया मैंने? D में. Suppose that the substance is converted into number of steps. अभी suppose ये रिएक्शन ये क्या हो रही है? नंबर ऑफ स्टेप में हो रही है। यहाँ पे पहली स्टेप में क्या बताया मैंने? लेट अस सपोज द सब्सटेंस ए इज कन्वर्टेड इनटू डी, दैट इज उसकी चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच है। सिमिलरली द सपोज द सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू ए इनटू डी इन नंबर ऑफ स्टेप्स, दैट इज द ए गोes to the what? A goes to B. And here is a change in enthalpy is the, what is this? Delta H1 is उसके change in enthalpy. B is a converted into C, that is the delta H2, and C is a converted into, that is the delta ES3. बराबर है। यहाँ पे मैं let us consider किया है, ये सबस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू डी, उसको कन्वर्जन करने के लिए इतनी चेंज इन एंथैल्पी लग रही है डेल्टा एच। Similarly, this reaction is takes place in number of steps. A goes to B, B goes to the C, and C goes to the D. Okay, that is a simply diagrammatically उसका representation करेंगे. That is A goes to the what? B, B goes to the C, and C goes to D. Okay, here is that is a path first, and its enthalpy is a delta H1. Here is a what? Delta S2 path second. Here is a delta S3, that is a path third, and ये direct first, and that is a delta H. Okay, now according to the, अभी यहाँ पे क्या according कीजिए? हेसिस लॉ according कीजिए, that is a delta H is equal to delta H1 plus delta H2 plus delta S3. अभी यहाँ पे एक स्टेप की चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच है और नंबर ऑफ स्टेप की चेंज इन एंथैल्पी कैसी? सेम है। द रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन वन स्टेप या नंबर ऑफ स्टेप, बट हीट ऑफ द रिएक्शन इज वो कैसे रहते? कांस्टेंट रहते हैं। दैट इज नोन एज, उसे कहते हैं हेसेस लॉ ऑफ द कांस्टेंट हीट समेशन। रिएक्शन वन स्टेप हो गई या नंबर ऑफ स्टेप हो गई तो तभी भी वहां पे हीट ऑफ रिएक्शन ये कैसे रहती है? सेम रहती है। दे आर स्टडीड बाय द हेसेस लॉ, एंड देयरफॉर दैट लॉ इज नोन एज, उसे कौन सा लॉ कहा जाता है? हेसेस लॉ ऑफ द कांस्टेंट हीट समेशन। ओके, हेसेस लॉ, हेसेस इज इम्प्लाइड दैट द, हेसेस ने क्या इंप्लाइज किया? दी हेसेस इज इंप्लाइज दैट द चेंज इन एंथैल्पी is only depend on the initial state to final state. हेसेस ने क्या implies किया है? The change in enthalpy is only depend on the initial state to final state. Does not depend on the, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं? सेवरल स्टेप के ऊपर, नंबर ऑफ स्टेप के ऊपर डिपेंड नहीं है। डज नॉट, इरेस्पेक्टिव द नंबर ऑफ स्टेप का कुछ भी लेना देना नहीं है। ओनली द चेंज इन एंथैल्पी इज ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। ये किन्होंने इम्प्लाइज किया है? हेसेस ने इम्प्लाइज किया है। ओके, द हेसेस लॉ ऑफ द कांस्टेंट हीट समेशन इज कैन बी एक्सप्लेन बाय द वन सुटेबल एग्जाम्पल से उसको क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पे हेडिंग देता हूं एक्सप्लेनेशन। द हेसेस लॉ ऑफ द, नहीं तो ऐसा करेंगे, द हेसेस लॉ ऑफ द कांस्टेंट हीट समेशन इज कैन बी explained by the suitable example, that is the, for example, the formation of the carbon dioxide। इस एग्जाम्पल से क्या एक्सप्लेन करेंगे? हेसेस लॉ एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे फॉर किसके लिए? हेसेस लॉ
हेसेस लॉ ऑफ द कांस्टेंट हीट समेशन एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द टू डिफरेंट वेज। कार्बन डाइऑक्साइड ये दो अलग अलग वे से क्या कर सकते हो आप, फॉर्म कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट वन इज पहले देखेंगे, दैट इज द फर्स्ट मेथड first. Now listen carefully. In this method, the carbon dioxide is directly formed when carbon solid is react with the oxygen gas and to obtain the क्या obtain हो रहा है आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, and here is a change in enthalpy is a minus 393.39 किलोजूल पर मोल्स। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या हो गया, डायरेक्टली फॉर्म हो गया इन द वन स्टेप फॉर्मेशन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स CO2 गैस, आणि उसको चेंज इन एंथैल्पी कितनी लग रही है, माइनस 393.39 किलोजूल पर मोल्स। आणि अनदर वन इज अ सेकंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करेंगे, मेथड सेकंड। इन दिस स्टेप द कार्बन डाइऑक्साइड इज अ फॉर्म बाय द टू डिफरेंट स्टेप। In the one step, पहले स्टेप में कार्बन सॉलिड इज अ रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गैस and ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द, आपको यहाँ पे पहले कौन सा गैस मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, and there is a change in enthalpy is the minus 111.72 kilojoule per mole. Okay, that is the first step. Next, the carbon monoxide gas is a react with a half of the oxygen gas and to obtain the यहाँ पे क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, and here is a change in enthalpy is the minus 283.67 किलोजूल पर मोल्स। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मैंने दो अलग अलग मेथड से फॉर्म किया इन द वन स्टेप, and another here is a how many step, two step. Okay, now according to the Hess's law, अभी यहाँ पे Hess's law को अकॉर्डिंग कीजिए, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अभी जब वन स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा वहां पे चेंज इन एंथैल्पी कितनी है, माइनस 393.39 इज इक्वल टू माइनस 100.72 प्लस minus 283.67, okay, is equal to minus 393.39 is equal to minus 393.39। यहाँ पे वन स्टेप को इतनी एंथैल द चेंज इन एंथैल्पी इतनी है और रिएक्शन टू स्टेप में हो गए तभी भी वहां पे चेंज इन एंथैल्पी कैसी है, सेम है। Therefore, this is known as उसे कौन सा लॉ कहते हैं, हेसेस लॉ ऑफ द कांस्टेंट हीट समेशन। रिएक्शन में कितने ही नंबर ऑफ स्टेप हो गए तो तभी भी वहां पे एंथैल्पी चेंज कैसा रहता है, सेम रहता है। हेसेस ने बताया है द चेंज इन एंथैल्पी इज ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट इररेस्पेक्टिव द नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, दिस इज द हेसेस लॉ ऑफ द कांस्टेंट हीट summation. Now we will discuss next point, that is the application of the Hess's law. अभी Hess's law के क्या देखेंगे, application देखेंगे। First of all give the heading application of the Hess's law. What are the application of the Hess's law? The first important application, the thermochemical equation can be added, subtracted, multiplied as like to the algebraic operation. Algebraic operation. This is the first important application. ये क्या बताया मैंने, Hess's law से
थर्मोकेमिकल इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, एडेड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाइड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. आई लाइक टू द व्हाट विच ऑपरेशन, algebraic operation. Second one is it is used to calculate the heat of reaction. Second one is a second application. It is used to calculate the heat of reaction. ओके कौन सी भी रिएक्शन है उस रिएक्शन में हीट डिटरमाइन करना किससे कर सकते हो आप, हेसेस लॉ से क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो. थर्ड वन इज the Hess's law is used to calculate the heat of slow या extremely fast reaction. Hess's law से it is used to calculate the heat of extremely slow या fast reaction. कौन सी भी रिएक्शन बहुत स्लो है या फास्ट है उसकी आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो, हीट ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो. फोर्थ वन इज it is used to calculate the heat of ionization. It is used to calculate the heat of ionization of the weak acid and weak base. जो weak acid and weak base है उसका हीट ऑफ आयोनाइजेशन क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज होता है, हेसेस लॉ का यूज होता है. नेक्स्ट वन इज इट इज यूज टू डिटरमाइन द bond enthalpy या bond energy. Hess's law is used to determine the bond energy. Next one is it is used to determine the calorific values. कौन सी भी आपको क्या डिटरमाइन करना है, कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करना है तो किसका यूज होता है, हेसेस लॉ. इट इज यूज टू कैलकुलेट द व्हाट, कैलोरीफिक वैल्यू क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए. नेक्स्ट वन इज इट इज यूज टू डिटरमाइन द हीट ऑफ आयोनाइजेशन. Another one is a neutralizations and combustions. Hess's law is used to determine the heat of ionization, heat of neutralization and heat of combustion reaction. ये अलग अलग रिएक्शन में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ आयोनाइजेशन ये डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज होता है, हेसेस लॉ का यूज होता है. नेक्स्ट इट इज यूज टू डिटरमाइन द हीट ऑफ हाइड्रेशन. इट इज यूज टू डिटरमाइन द हीट ऑफ हाइड्रेशन. जो हाइड्रेशन रिएक्शन है वहां पे कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो डिटरमाइन किससे कर सकते हो, हेसेस लॉ से डिटरमाइन कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज इट इज यूज टू डिटरमाइन द हीट ऑफ ट्रांजिशन. जो अलग अलग फिजिकल स्टेट है उसका हीट ऑफ ट्रांजिशन किससे डिटरमाइन कर सकते हो, हेसेस लॉ से. हेसेस लॉ इज यूज टू डिटरमाइन द हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ द डिफरेंट रिएक्शन. दिस इज अ डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ द हेसेस लॉ. ये आपको अलग अलग हेसेस लॉ के क्या पता होना चाहिए, एप्लीकेशन, बिकॉज on the application of the Hess's law in the CET examination या competitive examination may be asked different type of the multiple choice question. okay? यहाँ पे Hess's law में इसमें आपको न्यूमेरिकल 3 मार्क के लिए एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है. इसकी वजह से आपको Hess's law की पूरी डिटेल थ्योरी पता होनी चाहिए. What is the Hess's law? Which are the application of the Hess's law? Okay, good day.